Namaskar dosto, good evening friends. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly and familiar endocrinologist. And you are watching Dr. KK's Med Talks, Thursdays with Dr. Sanjay Kalra. आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 945वां 945th एपिसोड है. Let's have the headlines for today. Now, COVID has made a comeback and we have to be careful. अब GN1 वायरस आ गया है. ये कोविड का वेरिएंट है. It is a COVID of special interest. It is a COVID variant of special interest and it's a standalone virus. और अकेले इंडिया में नहीं, आसपास के देशों में भी ये वायरस बहुत फैल गया है. So I think we have to be careful again. Maybe not full lockdown, but full social hygiene is required. In other news, apart from COVID-19, other viral diseases such as dengue, chikungunya continue to be endemic in India, and we have to be careful about all of these. Lymphoma is a cancer that is very common, and experts have said that we can prevent and cure lymphoma if it is found detected in the early stages. In other news, it has been found that diabetes is associated with increase in bad cholesterol and also lowering of good cholesterol, and both of these have to be managed. And experts have warned that vitamin B12 deficiency and vitamin D deficiency are endemic in India, and these have to be managed if we need good nerve health and good muscle health. Now with this, let's come to our topic for today. अरे वाह, single lafaz, single shabd, just a single word, and a very bhari bharkam word. This is cancer. A word that makes some of us afraid, makes others angry, and makes others go into despair. But are these the right emotions? Or should this word spur us into action, into prevention? Let's find out. Let's find out from our expert. Warm welcome, Dr. Bimlesh Thakur. Thank you, sir. Good evening to all the listeners and viewers. Obviously, cancer as a term, it comes as a shocker to everybody. Nobody wants to hear this term, and it takes some time to absorb this fact that I have got a cancer. But the real thing is that it has been considered as a dreaded disease, but it is such a heterogeneous disease that it may mean different to different people. Yes. And cancer should be considered as a chronic disease rather than a dreaded disease, which can be managed as simply as we manage diabetes, hypertension, and other heart diseases. So this is the point that I want to put across. So warm welcome, sir. This is KK Med Talks, and we have people logged in. बहुत सारे लोग logged in हैं, and everyone eager to listen to Dr. Bimlesh Thakur, जो एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, जो दिल्ली में काम करते हैं गंगाराम हॉस्पिटल में. Dr. Bimlesh, people from across India have logged in. Bimla Thakur madam है, सुनीता रानी जी पूछती हैं, what should we do to avoid cancer? We'll take this question. आपको सर blessings आ रही हैं from one of the senior most physicians of the country, Dr. NS शारदा सर, ये अहमदाबाद से आपको सुन रहे हैं. अरुणा त्यागी जी and Dr. रमेश पाल सिंह पवार भी अपनी blessings आपको दे रहे हैं. डॉक्टर साहब pediatrician Thank you so much. Thank you so much, sir. He's in Saharanpur. Mr. Sharma, जो नर्सिंग फैकल्टी हैं प्रेस्टिजियस SGPJ लखनऊ में, वो लॉग्ड इन है. वो आपसे पूछेंगे कैंसर नर्सिंग के बारे में. गौतम जी, अनामिका अनु जी, डॉक्टर सिद्धार्थ डांगर, who is a very enthusiastic diabetologist from Mathura, he's here. Dr. Yogesh, रीता वधवा मैडम, and Dr. Utsav from Delhi. बट सर, सबसे पहले तो पूछेंगे, हमने कहा कि आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, बट डज दिस जस्टिफाई योर स्पेशलिटी? कैंसर स्पेशलिस्ट किस तरह के होते हैं और वो क्या-क्या काम करते हैं? हाउ डू दे वर्क एज अ टीम? Sir, like any other coordinated team, there is nobody can claim himself to be a whole and soul cancer specialist. It is a teamwork. I am nothing without my team. So I am a surgical oncologist. I make a part of a team which is led by surgical oncologists, medical oncologists, radiation oncologists, and the nursing staff.
and rehabilitation team. So, so it's a teamwork in cancer and oncology rather than as one man's job. और जैसे आपने कहा और एक आपको सैल्यूट आ रही है, सलाम आ रही है मंजीत कौर जी से, हू सेज दैट वी सैल्यूट ऑल द सेल्फलेस वर्क यू आर डूइंग फॉर अस। जैसे Thank you so आपने much. कहा कि कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस, इट्स नॉट समथिंग वी शुड बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट द सेम वे दैट वी से दैट वी लिव विद टाइप 2 डायबिटीज। और डायबिटीज में हम बहुत एम्फेसिस पे देते हैं कि सफर वर्ड ना यूज करें, डू नॉट यूज द वर्ड कि आई एम सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज। आप लफ्ज यूज करें आई लिव विद डायबिटीज, आई लिव विद टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। तो इसी तरह से कैंसर की साइंस में भी यही चीज है क्या, दैट यू कैन लिव विद कैंसर एंड यू कैन लिव अ मीनिंगफुल, अ फुल लाइफ। Exactly, sir. So cancer treatment takes a coordinated effort, and after the treatment is completed, cancer patients, we call them as cancer survivors, or cancer, more appropriately, cancer warriors, because they live their life very with full health, and they do their duties in the society as well as at their offices completely without any problems. ये तो बहुत ही अच्छा फ्रेज हुआ, मेरे लिए न्यू फ्रेज है ये। कैंसर योद्धा, दैट इज कैंसर वॉरियर, दैट इज द पीपल हु सर्वाइव कैंसर, हु फाइट इट एंड सर्वाइव। ऐसे ही हमारे डॉक्टर साहब भी यशस्वी योद्धा हैं। तो जो जो आपके पेशेंट्स हैं जो कैंसर के साथ जीते हैं और उनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं, अ, उनके मन में क्या-क्या थॉट्स आती हैं व्हेन दे कम टू यू? इनिशियली जब कैंसर का डायग्नोसिस होता है, हु इन इंडिया यूजुअली हु शेयर्स द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर? So usually, whenever a patient is diagnosed as a cancer, it is not just the patient who suffers; it is whole family who suffers, because mostly, some if the person is the primary bread earner, then the whole family is going to suffer. Apart from that, the attendants who leave their job and come for the treatment, it may take some time. Even in diagnosis, before treatment is begun, diagnosis itself takes some time. So it's not just the patient, it is the family who also suffers. So whenever they come, it's a primary job to take care of them, and we have to be aware of the fact that distress can occur to the patient as well as their family members. So as a sympathetic uh, cancer specialist, we take care of them also and their apprehensions also. आपको संजय गांधी जी गुड इवनिंग कर रहे हैं एंड रिगार्ड्स Good फ्रॉम evening, डॉक्टर sir. प्रदीप रावल। डॉक्टर साहब उज्जैन में Good हैं evening, sir. मध्य प्रदेश में। और एक करनाल से ललित कुमार साहब भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। Namaskar, sir. सर एक क्वेश्चन आ रहा है फ्रॉम डॉक्टर उत्सव साहू, ही इज अ ही इज अ फिजिशियन, अ डायबिटोलॉजिस्ट इन नॉर्थ दिल्ली। ही सेज सर वी आर सीइंग एन इंक्रीज इन द प्रेवलेंस इन द इंसिडेंस ऑफ कैंसर, इज इट बिकॉज ऑफ actual increase in incidence or is it because of increased awareness and screening? Sir, it is. I would say it is because of both of the things. हमारे जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं, इनका सर्वाइवल, इनका मैनेजमेंट इतना अच्छा हुआ है कि पीपल आर लिविंग लॉन्गर, and more cancers are diagnosed because of latest technologies. So I would say it is both the things. Okay, so both things. And why is Yes. the टेक्नोलॉजी या तकनीक की बाद में बात करते हैं, बट व्हाई इज द इंसिडेंस इंक्रीजिंग? हमारे वातावरण में क्या हो रहा है कि कैंसर बढ़ना शुरू हो गया है? So definitely, हमारा environment plays a big role in carcinogenesis. I think the lifestyle changes that has been happening. These are leading to increased incidence of cancers. So हमारी lifestyle changes में sir, we have become more inactive, sedentary, more addictions, tobacco, smoking, and alcohol. We have it has been increased. So that is why I think it is happening. तो इसकी अगर हम दूसरी परिभाषा लें, इफ वी लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वुड वी बी जस्टिफाइड इन डिबेटिंग, नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स में, बट वुड वी बी जस्टिफाइड इन सेइंग कि हम कैंसर को चूज करते हैं? मैं पर्टिकुलर बिहेवियर, पर्टिकुलर लाइफस्टाइल चूज करता हूं, जैसे बीइंग लेजी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, मे बी एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, एंड बिकॉज ऑफ माई चॉइसेस, yeah, the choices that are forced upon me by my society, because of that I am becoming more prone to cancer.
You're completely right, sir. I would say जेनेटिक मेकअप हमारा जो है एक फैक्टर तो है ही, बट एनवायरनमेंट इट इज द रियल ट्रिगर। द एनवायरनमेंट वी आर इन एंड हाउ वी डील विद इट, ये रियल ट्रिगर है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारे एडिक्शंस। अब इंडिया में ओरल कैंसर्स आर हाईएस्ट इन इन इंसिडेंस, सो एंड मोस्ट ऑफ देम आर ट्रैकेबल टू टोबैको अब्यूज ओनली। इसको अगर हम करेक्ट करें तो ऑल दीज कैंसर्स, well, a lot number of cancers will be prevented. As compared to breast cancer, there are hardly any risk factors जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, they are intrinsic. So this is how the cause of different cancers differs. So they are avoidable as well as unavoidable cancers. आपने शुरू में ही कहा था कि कैंसर एक बहुत हेटेरोजेनस, बहुत ब्रॉड टर्म है, एंड नाउ वी आर जी, रियलाइजिंग कि अलग-अलग तरह के कैंसर्स हैं। वी विल कम टू दैट, बट सम कैंसर्स आर एक्चुअली लिंक्ड टू लाइफस्टाइल एंड पर्सनल चॉइस, लाइक ओरल कैंसर्स। वी चूज़ yes. कि हम तंबाकू का सेवन करेंगे या तंबाकू अब्यूज़ करेंगे, एंड इसलिए वो कैंसर हमें चूज़ करता है। सर, एक आपको आदाब आ रही है अच्छन खान से, और एक बड़ी प्यारी गुड इवनिंग आ रही है डॉक्टर योगेश छाबड़ा से, करनाल से लॉग्ड इन है सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। राज कामला जी भी आपको नमस्कार कर रहे हैं, और आशा सरदाना जी कहती हैं, यदि आप किसी मनुष्य में, किसी डॉक्टर में भगवान को देखना चाहते हैं, तो डॉक्टर बिमलेश ठाकुर को देखें। तो वो हमने आज केके में टॉक्स में देखी। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। नीता रानी जी भी करनाल से हैं, और 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, दोनों फ्रॉम जी सर। इन करनाल। ललित कुमार साहब पूछते हैं, इन व्हाट एज डज कैंसर अकर? और हर एज में होता है क्या, हर उम्र में? और जैसे आपने लाइफस्टाइल की बात की, तो अब हाल ही में हमारी ओपीडी में एक 3 साल का बच्चा था जिसको ब्लड कैंसर है। तो उसको भी लाइफस्टाइल की वजह से हुआ क्या? उस 3 साल के बच्चे ने कैसा लाइफस्टाइल अपनाया होगा? नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारा जेनेटिक मेकअप ये भी एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण से कैंसर्स होते हैं। दूसरा, जो एज फैक्टर्स हैं, ज्यादातर कैंसर्स जो हैं ओल्ड एज में पाए जाते हैं, 40 से 65 साल के ज्यादा। अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो वहां पर ज्यादातर कैंसर पेशेंट्स 65 साल से ऊपर हैं। वहीं इंडिया में एक तिहाई के कैंसर 65 साल से ऊपर है। ज्यादातर जो है यंग मिडिल एजेड पेशेंट्स हमारे जो हैं कैंसर से प्रभावित हैं। बच्चों में भी कैंसर्स होते हैं जो अलग तरीके के होते हैं, और बच्चों का कैंसर्स का बर्डन हमारे देश में थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू दी रियल वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। वी आर यंगर एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड एज फार एज कैंसर इंसिडेंसेस आर कंसिडर्ड। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, इट अकर्स 1 डेकेड अर्लियर इन इंडियंस। हमारा जेनेटिक यस। मेकअप है, ऐसे कैंसर भी जल्दी होता है, एंड मिडिल एजेड में, जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, उनमें ज्यादा जी होता है कैंसर। एक और क्वेश्चन है, एंड ये है करनाल से ही सुनीता रानी जी का। सुनीता मैडम पूछती हैं कि कैन ओबेसिटी कॉज कैंसर? ओबेसिटी का ओवरवेट से लिंक है क्या? जी सर, ओबेसिटी एक बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर है। एंडोमेट्रियल कैंसर्स और इसोफेजियल कैंसर्स, कई कैंसर्स जो हैं वो मोटापे के कारण होते हैं। ये भी एक रिस्क फैक्टर है। तो वी एज ए ऑल्सो, लाइफस्टाइल फैक्टर, ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, they are a very important risk factor which can be modified through lifestyle measures. सपोज आई एम 55 इयर्स ओल्ड नाउ, और लेट्स से 45 या 65, अभी तक मैं लेजी रहा, इज इट टू लेट, या टुडे आई कैन बिगिन एक्सरसाइजिंग एंड रिड्यूस द So रिस्क ऑफ कैंसर इन द कमिंग लाइफ? So we can, for lifestyle modification, no age or no time is too late as compared to smoking and tobacco. The risk, how many years that we have smoked, जितने साल हमने स्मोक किया है, रिस्क उतना ही ज्यादा रहता है। और जितना हम उसको डिले करते हैं उतना ज्यादा हमारा रिस्क आगे के लिए भी बना रहता है। वहीं अगर हम कंपेयर करें ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, अगर हम इसको मॉडिफाई करते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ पहुंचते हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई रिस्क ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला बचेगा। सो इट इज नेवर टू लेट टू अडॉप्ट गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। डॉक्टर छाबड़ा साहब पूछते हैं दैट गुड डायग्नोस्टिक सर्विसेज
are available now in most cities in the country. And is this also cause for increased incidence of cancer? Sir, in fact, I would say good diagnostics are available. And when I mentioned about our team, and it's my mistake that I didn't mention good pathology and diagnostic services, because they have made the most important strides of late, and we are totally dependent on them. So, actually, good diagnostics are definitely playing a good role. अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो 50% से ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर जो है नॉन पैल्पेबल होते हैं, जो कि हम छू के नहीं देखते हैं, केवल मैमोग्राफी में डिटेक्टेड है डायग्नोस्टिक सर्विसेज के कारण ही। वहीं इंडिया में उतना इंसिडेंस नहीं है, क्योंकि मैमोग्राफी इतना ज्यादा लोग स्क्रीनिंग के लिए अपने कराते नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो डेफिनेटली good diagnostics are helping us in detecting cancer at an early stage and also giving them a good treatment. तो हम बात कर रहे थे यशस्वी योद्धाओं की, कैंसर योद्धास की। तो यशस्वी योद्धा में डॉक्टर योगेश भी आते हैं, who is जी बिल्कुल। contributing, Dr. Yogesh and all the other pathologists and radiologists of the country who contribute to detecting cancer at an early stage for us. और ये सही है क्या डॉक्टर ठाकुर कि यदि हम सही समय पे पकड़ लें कैंसर को, तो हम उसको क्योर कर सकते हैं, उसको जड़ से निकाल सकते हैं? और वही कैंसर अगर हम 1 या 2 साल के बाद पकड़ें, तो फिर कभी-कभी गाड़ी छूट जाती है और वी आर नॉट एबल टू हेल्प द पेशेंट। बिल्कुल सर, सही समय पे अगर कैंसर का इलाज किया जाए तो हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात ले लें, हमसे कई बार ये पूछा जाता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट तो बहुत महँगा होगा, कितना पैसा लगेगा? तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर हम अर्लीस्ट स्टेज में कैंसर को पकड़ते हैं, मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर को हम अर्लीस्ट स्टेज में लेते हैं, तो उसको केवल एक सर्जरी का ही एक्सपेंस लगेगा। जब हम लखनऊ में थे तो हम ब्रेस्ट के कैंसर की सर्जरी 12-15 हज़ार में भी कर दिया करते थे। और जो अर्लीस्ट स्टेज T1 जिसे स्टेज कहते हैं, कई बार केवल उतना ही पर्याप्त होता है उसके लिए, ना उसको आगे रेडिएशन ना कीमोथेरेपी लेनी है, लाइफ लॉन्ग एंडोक्राइन ट्रीटमेंट लेना है व्हिच इज़ वेरी इकोनॉमिकल। तो ये कहना भी मुश्किल है, ये सही नहीं होगा कि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत महँगा है। तो जल्दी स्टेज में अगर अर्ली स्टेज में अगर हम ट्रीटमेंट कराते हैं, हमारा कॉस्ट कम होगा। दूसरा सर्वाइवल एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलेगा। अर्ली स्टेज में जो अगर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उनका ब्रेस्ट कैंसर में तो 95 टू 100% सर्वाइवल है। बाकी कैंसर्स में भी 90% से ऊपर ज़्यादा सर्वाइवल है। वहीं अगर हम लास्ट स्टेज अ, अगर में कराते हैं ट्रीटमेंट, तो 50% से भी कम का सर्वाइवल रहता है, इवन इफ इट इज़ टोटली क्योर्ड। और अगर डिस्टेंट स्टेज में एडवांस स्टेज में है, तब तो सर्वाइवल डेफिनिटली कम हो जाता है। तो और जितनी ट्रीटमेंट भी जल्दी एक्सपेंसिव है। जी। जितनी जल्दी पकड़ेंगे बीमारी को, उतनी जल्दी इलाज कर सकते हैं और इलाज का आउटकम भी बेटर होगा। बट लेट्स जी। आस्क एवरीबॉडी अ क्वेश्चन एंड लेट्स गेट द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। ये इंग्लिश का मुहावरा है, अंग्रेजी का प्रोवर्ब है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। इसकी हिंदी बताएं, इसकी उर्दू बताएं। कैन यू ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश, फ्रॉम इंग्लिश इनटू हिंदी और उर्दू? अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। एक और मुहावरा शेयर करेंगे इंग्लिश का, दैट इज पेनी वाइज पाउंड फुलिश। तो शुरू में अगर आप इलाज नहीं करवाते, पेनी वाइज, बिल्कुल, बाद में ज्यादा बिल्कुल। खर्चा भी आएगा, रिजल्ट्स भी कम आएंगे। पेनी वाइज पाउंड फुलिश। सो लेट्स सी इफ वी कैन गेट ट्रांसलेशंस इन एनी इंडियन लैंग्वेज फॉर दिस। इन द मीनवाइल सर, संजय मट्टू जी आपको नमस्कार कर रहे हैं और शर्मा जी नमस्कार सर। लखनऊ से सवाल पूछते हैं। सर, दिस चैलेंज नमस्कार इवन सर। आई फेस इट, डॉक्टर बिमलेश। Mr. Sharma says, please explain how we can explain cancer to a non-medical person. What happens in the body? What happens in the tissue? What is the pathological change in cancer? देखिए, हमारे शरीर में जो कोशिकाएँ हैं, सेल्स हैं, दे आर डेस्टाइन्ड टू ग्रो एंड एट सेवरल साइकल्स ग्रोथ के बाद दे आर डेस्टाइन्ड टू डाई आल्सो। सो दिस इज़ अ यूजुअल फिनोमेना। हमारे अगर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की बात करें, तो हमारी म्यूकोसा अंदर की जो लाइनिंग है, हर 4 ती 3 2-3 हफ्ते के अंदर कंप्लीटली चेंज हो जाती है। सो दिस इज़ नॉर्मल प्रोसेस, बट आफ्टर सेवरल साइकल्स एवरी सेल हैज़ टू डाई। सो इसी मैकेनिज्म में जहाँ पर चेंज होता है हमारे जेनेटिक मेकअप में, एनी इंसल्ट टू द डीएनए और जेनेटिक मेकअप ऑफ द सेल्स that causes uncontrolled proliferation or any escape from uncontrolled
any escape from its programmed death that causes अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन ऑफ द कैंसर सेल्स, जिसकी वजह से एक कैंसर अपने आउटग्रो करता है। दूसरा, एज जैसे जैसे कैंसर की कोशिकाएं और बनती हैं, इसमें और म्यूटेशंस और चेंजेस आते हैं, जिसके कारण इसकी टेंडेंसी बाहर फैलने की, लिम्फ नोड्स में और हेमाटोजेनसली फैलने की भी बढ़ती है। फॉर दोज ऑफ अस फ्रॉम द फार्मिंग बेल्ट, जैसे आप अपने गार्डन में अपने बाग में बागबानी करते हैं, तो आप देखेंगे पौधे उगते हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं, सो द ट्री ग्रोज। एट द सेम टाइम आप ट्रिमिंग भी करते हैं पौधों की, उनकी टहनियों की, उनके पत्तों की, यू कट देम। दैट्स व्हाट हैपेंस इन द बॉडी। कोशिकाएं बनती भी हैं और टूटती भी हैं। देयर इज ब्लास्टोसिस एंड क्लास्टोसिस, और अगर ये बैलेंस बना रहे, बीच में एक बैलेंस बना रहे, तो बॉडी हेल्दी रहती है। अगर वो बैलेंस बिगड़ जाए कि न्यू सेल्स लगातार बनती जाएं और आप कटिंग ना करें, जैसे बागबानी प्रॉपर्ली ना करें, तो जो आपका बाग है, बिल्कुल सुंदर सा बाग, सडनली इन अ फ्यू मंथ्स यू विल सी कि वो बिल्कुल ओवरग्रोन हो जाता है, वीड्स के साथ भी, सही पौधों के साथ भी। तो ऐसे ही कुछ कैंसर में होता है। एंड इफ द बॉडी इज नॉट एबल टू हैंडल इटसेल्फ, फिर गड़बड़ होती है। रेशमा जी पॉइंट आउट करते हैं, सर, दैट इट्स वेरी डिप्रेसिंग टू सी द यंग जनरेशन ऑफ इंडिया नाउ getting addicted to smoking and tobacco and alcohol, both boys and girls, men and women. And this is in spite of the fact that the government does everything to tell people that smoking is injurious to health, alcohol consumption is injurious to health. तो क्वेश्चन ये आ रहा है सर, ललित कुमार जी भी पूछते हैं, दिस लाइव चैट इज यूजफुल फॉर एवरीवन, व्हाट इज द मेडिकल फ्रेटर्निटी डूइंग, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं जैसे आप हैं, व्हाट आर यू डूइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कैंसर? देखिए, हम अपना रोल जो है पूरी तरह से प्ले कर रहे हैं। जैसे हमारे कोई भी पेशेंट्स होते हैं जो कंप्लीटली ट्रीट होते हैं, अगर वो पेशेंट आगे जाके 4-5 लोगों को कहता है कि तंबाकू खाने की वजह से मुझे ये हुआ है, दैट कैरीज मोर वेटेज देन अ फिजिशियन और डॉक्टर सेइंग समबडी टू स्टॉप, अवॉइड एंड स्टॉप टोबैको। तो हम ये मैसेज पास ऑन करने की कोशिश करते हैं कि ये आपको आगे भी बताना है कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए और रिजल्ट सामने ही है। दूसरा, इट इज़ वेरी शॉकिंग दैट एज़ अ सोसाइटी वी हैव फेल्ड टू कंट्रोल द use of tobacco. Alcohol is not as harmful as tobacco, that is tobacco, which is causing a major brunt of cancers in India. But unfortunately, tobacco has been promoted everywhere. Film stars and celebrities, they promote pan masala and all these brands, but पहले nobody, 2 थे, अब 3 हो गए हैं अब टीवी पे। पहले सिर्फ 2 आते थे, अब 3 हो गए हैं। everybody is endorsing these pan masala factories, but actually nobody is showing that those who actually use these products, what happens to them. It is a shocker that a Marlboro's uh, cigarette brand, the most of the models who used to smoke, even Marlboro, they died of cancers only because of smoking. Even though their ad, and it has been very popular as a cigarette brand, but nobody knows that how many models of the Marlboro company has died of cancers. एक्चुअली So यू आर राइट, जब हम टीवी देखते हैं या एड देखते हैं, तो ऐसे लगता है दैट स्मोकिंग इज अ वेरी मैचो थिंग फॉर मेन, स्मोकिंग इज अ exactly, sir. साइन ऑफ मॉडर्निटी, मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म फॉर वुमेन, जबकि एक्चुअली बिल्कुल उलट है। फ्रॉम एन एंडोक्राइन पर्सपेक्टिव ये कहूंगा कि यदि आप तंबाकू का सेवन करते हैं, तो तंबाकू आपकी खून की नसों में काई की तरह जम जाता है। In the blood vessels of your body, all the blood vessels from head to toe, tobacco will stick like slime, like mucus. अब वो खून की नसों में जम जाएगा, तो खून की नसें टाइट हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, जैसे काई जम गई। तो दिमाग की नसों में कम खून जाएगा, आपका ब्रेन वीक हो जाएगा। हार्ट की नसों में कम खून जाएगा, तो हार्ट अटैक का चांस ज्यादा है। हर अंग में कैंसर होने का चांस ज्यादा है। और अगर जो हमारे शरीर के निचले हिस्से की जो खून की नसें हैं, इसको प्यूडेंडल आर्टरी बोलते हैं, वहां पे अगर काई जम जाए, तो कमजोरी आती है। तो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ मैचो काइंड ऑफ अ पर्सन, एक्चुअली मर्दाना कमजोरी हो जाएगी विद टोबैको, क्योंकि टोबैको खून को नीचे तक जाने नहीं देता। सो इफ देयर इज वन लाइफस्टाइल चॉइस which actually leads to sexual dysfunction, that is tobacco.
Rightly said, sir. Rightly said. Um, और देखो हमने तंबाकू की बात की और हमारा जो बैंडविड्थ है उसको भी काई लग गई। सो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ टोबैको। अगर आप टोबैको के बारे में सोचेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। एंड हमारा ये जो बैंडविड्थ है वो कम हो गया। इन द व्हाइल वी वेट फॉर सर टू कम बैक, अली नजाकत साहब को गुड इवनिंग करते हैं। एंड रेशमा जी पॉइंट आउट करती हैं दैट स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर कैन बी डन बाय मैमोग्राफी। फॉर सर्वाइकल कैंसर कैन बी डन बाय समथिंग कॉल्ड पैप स्मीयर, PAP, पैप स्मीयर, जो साल में एक बार हर महिला का होना चाहिए। But her question is, how can we catch other cancers at an early stage? So we'll wait for Dr. Bimlesh to come back. पूनम जी पूछती हैं, any specific symptoms for any kind of cancer or only by regular checkup? So again we'll wait for Dr. Bimlesh to come back. But यदि कोई अचानक कोई ग्रोथ होती है बॉडी में, अचानक कोई सूजन आ गई, अचानक कहीं से ब्लीडिंग हो गई, तो हो सकता है कि कैंसर हो। नाउ इट डजंट मीन कि हर एक फिंसी फोड़े को हम कैंसर के बारे में का दर्जा दें और उसके बारे में सोचें, बट एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी वी शुड गो टू अ डॉक्टर। वी शुड ऑल्सो गो फॉर annual checkup, especially if we cross the age of 40. Dr. Yogesh Chabra, who is the leading pathologist of Haryana, he says that we organize camps on the 4th of February every year. This is World Cancer Day, and we explain to our patients. And I think this is the best way. Thank you, Dr. Chabra, for leading from the front. अगर आप डायरेक्टली बात करें पेशेंट से, कम्युनिटी से, तो पेशेंट आगे मैसेज स्प्रेड करती है। वेलकम बैक डॉक्टर ठाकुर एंड आल्सो वेलकम टू I'm विनायक sorry सर। for making. जी, हम तो ये बात कर रहे थे डॉक्टर विमलेश कि हमने तंबाकू की बात की तो हमारे बैंडविड्थ को काई लग गई, जब बैंडविड्थ जम गई। तो जो तंबाकू का जी सेवन सर। करते हैं उनका क्या हाल होता होगा? जी सर, मैं एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग एनालॉजी शेयर करना चाहता हूँ सर, कि अगर हम कंपेयर करें हमारे जो कैंसर्स हमें दिखते हैं और जो कैंसर्स हमें नहीं दिखते हैं, बॉडी सरफेस एरिया हमारा मुश्किल से 1.5 से 1.5 टू 1.7 मीटर स्क्वायर होता है। अगर हम अपने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डाइजेस्टिव सिस्टम की सरफेस एरिया की बात करें, तो ये कम से कम 30 मीटर स्क्वायर होता है, which is such a huge number. और अगर हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के सरफेस एरिया की बात करते हैं, इट में गो अप टू 100 मीटर स्क्वायर। So we are exposing so much of area to carcinogens. So I think this is an interesting point to notice, that if we smoke, we are exposing such a large area of our body to these carcinogens. That is why it is so harmful. People will say that cancer occurs because of air pollution, and rightfully so. But then you have modifiable factors and non-modifiable. अब जो non-modifiable हैं, उनका तो कुछ कर नहीं सकते. So at least we should focus on the modifiable factors. अरे वाह, डॉक्टर शारदा Rightly सर said, sir. पॉइंट आउट करते हैं, डॉक्टर बिमलेश सर, डॉक्टर शारदा सर पॉइंट आउट करते हैं दैट इवन अ डोंकी अवॉइड्स टोबैको। वी डोंकीज भी तंबाकू का सेवन नहीं करते। और हम ह्यूमंस अपने Exactly, आप को sir. होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं। पहले हम अपने आप को होमो सेपियंस कहते थे। दैट मींस द होमो स्पीशीज व्हिच इज इंटेलिजेंट। नाउ वी चेंज्ड आवर नेम, वी कॉल आवरसेल्व्स होमो सेपियंस सेपियंस। दैट इज द होमो स्पीशीज व्हिच इज इंटेलिजेंट एंड व्हिच नोज दैट इट इज इंटेलिजेंट। तो हमें गुरूर और घमंड है अपनी इंटेलिजेंस का, बट फिर भी हम ऐसी चीजें करते हैं जिसके साथ हम अपना ही नुकसान कराते हैं। थैंक यू सर फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। सर, मेनी Exactly, मोर sir. क्वेश्चन एंड डॉक्टर सिद्धार्थ डांगर पॉइंट्स आउट दैट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हेल्प्स, अर्ली डायग्नोसिस एंड फॉलो अप इज द बेस्ट। एक आपको सलाम आ रहा है सर फ्रॉम काबुल, अफगानिस्तान। डॉक्टर नूर आगा दानिश आपको सलाम भेज रहे हैं वहां से। नमस्ते सर। एंड पूनम जी का सवाल है और रश्मि जी का, लेट मी टेक देम टुगेदर। एनी स्पेसिफिक सिम्टम्स व्हिच विल हेल्प अस डायग्नोज कैंसर? एनी रेगुलर चेकअप्स दैट आर रिक्वायर्ड? इज देयर एनी टेस्ट दैट आई शुड गेट डन एनुअली इन ऑर्डर टू रूल आउट कैंसर? और रश्मि जी ने पहले ही बात की थी, रेशमा जी ने बात की थी कि मैमोग्राफी और पैप्समियर तो है ही हैं, इसके अलावा क्या चीजें हम कर सकते हैं? तो मे बी महिलाओं को और आदमियों का आप अलग-अलग जवाब अगर दे दें सर। हम्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है सर, और मैं चाहता हूँ ये मैसेज सबको ही जाए कि हम क्या कर सकते हैं इस कैंसर से बचने के लिए। एक तो हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस तो ज़रूरी हैं ही सर।
और हमें प्रिवेंशन के लिए ये टोबैको, अल्कोहल इन सब का सेवन कम करना चाहिए, हमारे लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस तो करनी ही चाहिए। जैसे अपना जिसमें हम सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल ना लेके फिज़िकल एक्टिविटी को ज़्यादा यूज़ करें एट लीस्ट। जैसे आप कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ेज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन आप प्रिस्क्राइब करते हैं, वही इसमें भी काम आती हैं सर। तो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा हमें अपने डाइट में भी मॉडिफ़िकेशन करने चाहिए। वी शुड यूज़ मोर कलर्ड fruits and vegetables, fresh fruits, rather than fast food which is cooked so fast and at a very high temperature in such unhealthy oils. We should avoid that. और अ, जो कैंसर्स मॉडिफाइबल नहीं हैं और जो मॉडिफाइबल भी हैं, उसके लिए इतने सारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं। इंडिया में भी इसको प्रोपेगेट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली नेशनल प्रोग्राम्स में नहीं है, फिर भी हम सबको मालूम होना चाहिए एज़ अ हेल्थ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आवरसेल्व्स टुवर्ड्स आवर हेल्थ, वी हैव टू स्क्रीन आवरसेल्व्स। महिलाओं के लिए प्रिस्क्राइब्ड है कि 40 साल से ऊपर हर महिला को एक मैमोग्राफी हर साल करानी चाहिए एटलीस्ट। और मैमोग्राफी की फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग आगे कैसी मैमोग्राफी की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये डिस्क्राइब्ड है, ये होना चाहिए। और मैमोग्राफी कराने के बाद आप एक अपने सर्जन या फिजिशियन से मिल सकते हैं, जो आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सिखाएंगे। हालांकि इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट प्रिवेंशन में नहीं आया है, लेकिन इट इज अ वेरी गुड एडजंक्ट टू एनुअल मैमोग्राफी। और पैप स्मीयर दूसरा कराना चाहिए। हेलो जी हाँ, ठीक है, कैरी ऑन, लेडीज का हाँ ये भी चल रहे हैं। जी जी। और 21 साल की उम्र के बाद हर एक महिलाओं को पैप स्मीयर ना कराना चाहिए हर साल। और स्क्रीनिंग करना चाहिए। महिलाओं के कैंसर्स में ही एक कैंसर आता है सर्वाइकल कैंसर, जिसको कंप्लीटली प्रिवेंट किया जा सकता है। इनफैक्ट वी कैन टॉक अबाउट एलिमिनेशन ऑफ this cancer which is called cervical cancer, because most of these cancers are because of HPV infection। तो हर एचपीवी इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारे पास एक बहुत इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है, जो 9 स्ट्रेन्स ऑफ एचपीवी को कवर करती है, जो कि हमें हर ये गर्ल्स को उसकी प्यूबर्टी आने के समय से ही देना शुरू करना चाहिए। एंड इट इज रिकमेंडेड कि 11 इयर्स से लेके 27 इयर्स तक के गर्ल्स को 3 डोज एचपीवी वैक्सीन की दी जाए। तो इससे अगर हम 90% of the girls, if they are covered, we can aim towards elimination of cervical cancer. So I think this message should go very strongly that we should consider this। और दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिसमें ये नेशनल प्रोग्राम में भी आ गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में नहीं है, आई थिंक बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। बट हर किसी को इसको ध्यान रखना चाहिए और इसे यूज करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जो लड़कियां ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती हैं, इनको वैक्सीनेशन देना चाहिए। दूसरा So let's जी just remind for women, mammography regularly, pap smear regularly, young age में भी स्टार्ट करें। एंड आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके एचपीवी वाली वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन है वो जरूर लगवाएं। बल्कि अब लड़कों में भी इंडिकेटेड है ये। एंड इन वन ऑफ जी द प्रीवियस केके मेटॉक्स वी हैड स्पोकन अबाउट द डोजेज अबाउट वैक्सीनेशन। तो ये तो हो गया यस। सर महिलाओं का। पुरुषों के लिए क्या आदेश है सर? पुरुषों के लिए सर ज़्यादातर ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हाई रिस्क लोगों में वैलिड हैं। जैसे कि जिन लोगों को की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मोकिंग हिस्ट्री है, they should consider annual CT scan, low dose chest CT scan, to detect early any cases of lung cancer। So उन पेशेंट्स में एनुअल सीटी स्कैन इंडिकेटेड है। दूसरा, कुछ पेशेंट जो हैं अल्कोहलिक एंड लिवर सिरोसिस के हैं, तो इनको भी स्क्रीनिंग इनके लिए अल्ट्रासाउंड के द्वारा जरूरी है, ताकि हम अर्लीस्ट पॉसिबल कोई लिवर नोड्यूल या लिवर के कैंसर को डिटेक्ट कर सके। प्रोस्टेट कैंसर के लिए अगर स्क्रीनिंग की बात करते हैं, तो ये भी हमें
it is not as important, but clinically relevant तो आपको एक clinical examination of the prostate और PSA टेस्ट कराने की आवश्यकता होती है। और कोलन कैंसर के प्रिवेंशन के लिए हमारे देश में तो नहीं है, लेकिन दूसरे देशों में 50 साल से ऊपर के लोगों को हर 10 साल में कोलोनोस्कोपी कराने के लिए एडवाइस किया जाता है, जो कि अब रिकमेंडेशन और भी कम कर दी गई है। एवरेज रिस्क में 45 साल से ऊपर ही हर 10 साल में कोलोनोस्कोपी कराने के लिए रिकमेंडेशन है। और जिन पेशेंट्स की एक जेनेटिक हिस्ट्री है, फैमिली में कोई हिस्ट्री है, दे शुड बी इवन मोर कॉन्शियस एंड दे शुड बिगिन द स्क्रीनिंग even before the normal population. And I'd also like to reinforce this. तकरीबन हर एक कैंसर डिजीज में, तकरीबन इन ऑलमोस्ट एवरी कैंसरस डिजीज देयर विल बी अ प्री कैंसरस स्टेट, और काफी लंबा टाइम बॉडी हमें देती है टू डिटेक्ट इट। एक एग्जांपल लेते हैं, अल्ट्रासाउंड आप कराने गए, आपका फैटी लिवर निकला, अल्ट्रासाउंड वालों ने बोला कि आपका फैटी लिवर है। ज्यादातर हमारी टेंडेंसी होगी ये तो कुछ नहीं, हर एक मोटे आदमी में होता है, इसको छोड़ो, इसका कुछ नहीं करना, विटामिन ई ले लो और कुछ नहीं करना। और वही फैटी लिवर कल को जाके हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है, चाहे 1% लोगों में हो चाहे 10% में, दैट इज अ सेपरेट मैटर। पर जिसमें हुआ उसमें तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाएगा, एंड देन देयर इज नो एस्केप। वी ऑल्सो नोट कि अभी तक किसी ने हिंदी ट्रांसलेशन अनुवाद नहीं करके दिया हमें स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन का या पेनीवाइज पाउडफुल का। तो ये जो अगर हम पिकअप कर लेते हैं, एंड डॉक्टर बिमलेश, आई हैव कॉट माई सेल्फ इन दी ओपीडी ऑल्सो सो मेनी टाइम्स। अर्लियर आई यूज्ड टू से फैटी लिवर कुछ नहीं करना, बस 2-3 किलो वेट कम करो, ठीक हो जाओगे। एंड हाउ टू रिड्यूस दैट 2-3 किलो वेट, उसकी बात नहीं करनी हमने, चाहे दवाइयों के साथ चाहे एक्सरसाइज के साथ। बट नाउ आई हैव बिकम more vigilant and more careful also, because if we don't catch these things early, चाहे benign prostatic hypertrophy हो चाहे fatty liver हो, we actually end up in a cancerous state 10 years from now. बिल्कुल सर। जैसे पहले हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी यूज्ड टू फॉर्म द मेजर बल्क ऑफ कॉज ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, बट इट इज नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड कि फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जिसे हम कहते हैं, दे आल्सो फॉर्म a very important part of the patients who develop hepatocellular carcinoma, and with time it will increase more than almost equal to hepatitis category cirrhosis. So fatty liver should not be taken so very lightly. Mr. Sharma from SGPGI Lucknow, he asks, sir, considering the increase in cancer cases, are there any medical insurance plans which are focused specifically on cancer prevention and treatment? So there are many plans which cover cancer, and I would advise, यूजली हम 10 लाख 20 लाख तक का कैंसर का हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, बट ऑफ लेट कैंसर ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। तो ऐसे इंश्योरेंस प्लान्स जो पूरी फैमिली को कवर करें और जिसमें अमाउंट भी एटलीस्ट, मैं तो कहूँगा कि आज के ज़माने में 1 CR तक का कवर होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस में, और वो कवर जो पूरी फैमिली को इंक्लूड करे, दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल। So speak with your insurance provider and see if you can find a family plan which has a high cap. Dr. Chabra, Exactly. Dr. Chabra point out करते हैं that there is a shortage of oncologists in the country, surgical oncologists भी और medical oncologists. तो इनकी seats बढ़नी चाहिए so that all tier 2 and tier 3 cities also get doctors who can detect and treat cancer. I would partially agree with sir. There is shortage, but actually there is um, a gap in the availability of cancer specialists across India, because most of them are concentrated in metro cities only. So I think there is a diverse gap between different places. But definitely seats should increase, and their availability at all the places should be there. एक और इश्यू है कि कैंसर मैनेजमेंट के लिए टीम वर्क चाहिए। यू नीड नर्सेज, यू नीड डॉक्टर्स, यू नीड रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, एंड क्रिएटिंग अ टीम इज रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट।
On the other hand, let's say you are managing endocrinology या rheumatology, you can go into solo practice. टीम वर्क इज इम्पोर्टेंट, एंडोक्रिनोलॉजी में भी टीम वर्क चाहिए, बट आप फिर भी मैनेज कर सकते हैं अगर अकेले हो तो वो भी एक चैलेंज है फॉर कैंसर डॉक्टर्स टू गो आउट इनटू स्मॉलर सिटीज, क्योंकि टीम वर्क का साधन नहीं होता, फ्रेमवर्क नहीं होता जहां पे आप टीम वर्क क्रिएट कर सकें। सर सर आपने आई वुड से जी जी सर प्लीज आंसर। कैरी ऑन करें। हाँ। मैं टीम वर्क की बात कर रहा था सर। इट इज डिफिकल्ट टू मेक अ गुड टीम एंड it is very difficult to be make all the team members present at one point of time at all the places, but I think as a good team member we can diversify, we can go at different places, because all it takes is one person who can take charge of a patient. He can be either a surgical oncologist, a medical oncologist, radiation oncologist, or a primary care physician also, who can coordinate all the treatment plan. It takes just one oncologist to formulate a plan for a patient, and the whole of the team gets into action. I think a coordinated plan with individual responsibilities of all the team players is more important. एंड जैसे सर हम करनाल में हम आते हैं यहाँ पर हम वी आर सर्जिकल oncologist, we see patients, we formulate a plan, we have medical oncologist available in Delhi, radiation oncologist in Delhi, Chandigarh. We coordinate through them and we formulate a plan and we follow them up. तो इस तरीके से सर, even though we are very far in distance, very far through communication also, but the team works coordinatedly sir. तो ये अच्छी चीज है। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन allow us to treat people across the country even if the oncologist is not living there in that particular city. Sir, many more questions. It's 7:45 already. आपने बात की थी कोलोनोस्कोपी की। रेशमा जी फिर से पूछती हैं, is there any test to detect intestinal cancer at an early stage? सर यही कोलोनोस्कोपी ही पाया गया है जिसने ये इस आम पॉपुलेशन में हमारी जन पॉपुलेशन में जिस कोलन कैंसर की मोर्टेलिटी को कम किया है। तो कुछ और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं कोलोनोस्कोपी की जगह। एक शॉर्ट कोलोनोस्कोपी जिसे सिग्मोइडोस्कोपी कहते हैं, वो थोड़ी कम फ्रीक्वेंटली यानी 5 इयर्स में कराना, या फिर हम हर साल में एक स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड थ्रू हाई सेंसिटिविटी, वो अगर हम कराएं तो उससे भी वो भी प्रिस्क्राइब्ड है, जो लेकिन हर साल या 2 साल में कराना पड़ता है। So the simplest test would be a non-invasive test would be stool for occult blood. Dr. Yes sir, but it is not so Specific. prominent, not so specific, because colonoscopy forms and detects polyps more early. Colonoscopy में polyps अगर आपको दिखते हैं, the gastroenterologist removes the polyps then and there and diagnosis occurs there itself. So I would say colonoscopy is a better method. Other methods are just alternatives if they are not available. So colonoscopy would be the gold standard. And then if there Yes. is a strong family history of cancer या past history of cancer, फिर और चुकन्ना रहना चाहिए। Yes sir, at least 10 years prior to the first index case. अगर मान लीजिए 40 साल की उम्र में किसी को फैमिली में हुआ है, तो उसको तो 30 इयर्स में ही स्क्रीनिंग शुरू कर देना चाहिए। कुछ फैमिलियल कैंसर्स हैं कोलन के, जिसमें हमें 20 साल से ही शुरू कर देना चाहिए कोलोनोस्कोपी। इट वेरीज फॉर डिफरेंट पेशेंट्स। जय यदुवंशी जी पूछते हैं, in the toothpaste they say that there is sodium lauryl sulfate. Can toothpaste cause cancer? सर टूथपेस्ट तो अभी तक कभी डिस्क्राइब नहीं किया गया है कैंसर्स के लिए। मैं ये लेकिन ये कहूँगा कि सर नॉट जस्ट टोबैको, इंडिया में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जिससे हमें कैंसर के का रिस्क बढ़ सकता है। जैसे सुपारी हो गया, कत्था हो गया, चूना हो गया, गुलमंजन भी लोग करते हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट इट इज़ आल्सो कार्सिनोजेनिक। और मैं ये कहूँगा हमारे देश में ये टोबैको तो एज़ ए सोशल इश्यू है, क्योंकि ये तो हमारे पुराणों में भी है, पान पूजा में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हेल्दी नहीं है हर चीज़ जो कि हमारे उसमें पूजा वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। इसका सेवन करना फ़ायदेमंद नहीं है।
संजय मट्टू साहब पूछते हैं, फूड दैट इज कुक्ड इन द माइक्रोवेव ओवन, कैन माइक्रोवेव ओवन कुक्ड फूड कॉज कैंसर? नहीं सर, माइक्रोवेव ओवन में जो फूड कुक किया जाता है, it doesn't cause any other ionizing radiations. It cause, in fact, जो canned foods हैं, highly processed foods हैं, ये ज़्यादा cause करते हैं. Any food that is cooked at your home, I would say it is good. And Dr. Siddharth asks, could you tell us more about PSA, prostate specific antigen? ये क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है इस टेस्ट की, और इसकी कमियां क्या हैं? So प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ये एक ट्यूमर मार्कर है, जो ये नॉर्मल ही प्रोस्टेट के सेल्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं. तो अगर बढ़ती उम्र के साथ प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है, पीएसए भी बढ़ता है, लेकिन कुछ वॉल्यूम से अगर ज्यादा होता है पीएसए, तो हमें सस्पिशन करना चाहिए कि प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है. उस स्टेज में हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी कराना है. तो प्रोस्टेट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन with serum PSA in all those patients which have prostatic enlargement is a good method to screen them for prostate cancer. एक क्वेश्चन मैं लेता हूं और डॉक्टर वीके गोयल सर पूछते हैं, अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड इन फैटी लिवर, it does help bring down the SGOTPT, the liver enzymes, Dr. Goyal, but we call it window dressing because the OTPT will come down, but actually nothing will happen to the histology. So there is a challenge in managing fatty liver, and the challenge is that the management is in the patient's hand. The first line therapy is around 5% weight loss, जो कि कहना आसान है, करना मुश्किल है. But if we can explain to the patient the potential complications that may occur with that slightly elevated SGOTPT, then I think the patient understands. You have to connect that SGOTPT to heart disease, stroke, metabolic syndrome, premature death, cancer. And if you can do that, and if the patient can get into an exercise and dietary lifestyle which is healthy, then certainly the fatty liver can regress. मेरा OTPT हाई रहता था डॉक्टर गोयल काफी टाइम, and the only thing that worked was joining Bhangra classes. So that is something I'm very fond of. And मेरा weight भी आ गया वापस, but the SGOTPT are normal, and I think the credit goes to my Bhangra teacher, and not to ursodeoxycholic acid. Sir, what I think is that even obesity or fatty liver disease, they are pro-inflammatory states. And even cancer is a pro-inflammatory state. If we can adapt to a healthy lifestyle with lifestyle management and decrease our inflammatory state to normal, I think a lot of difference can happen, be it for cardiovascular diseases or fatty liver disease and its sequelae, or cancer risk for the cancer also, I would say. Dr. Yogesh has a very challenging question, a medical question from Dr. Chavda. Which is the most dangerous cancer? Is it glioblastoma multiforme or any other candidate for this? Sir, like I said, cancer is very heterogeneous. A simple a low grade cancer which has metastasized to different organs, that is also dangerous. Even a small cancer present at a precarious location, it is also fatal. So I would say we cannot say which we cannot compare two different cancers together. But yes, we know there are good behavior cancers and bad behavior cancers. Even in a same organ, the cancers are different. Same histology, their molecular subtypes are there which respond completely differently to different agents. So I would say there are so many things that decide prognosis of the patient, not just a single diagnosis. एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं राहुल जी का, बट मल्टीपल क्वेश्चंस हैं. अली नजाकत साहब पहले पूछते हैं, इज देयर एनी रोल ऑफ विटामिन डी और मेटफॉर्मिन इन प्रिवेंटिंग कोलन कैंसर इन हाई रिस्क पेशेंट्स? मेटफॉर्मिन या विटामिन डी का? विटामिन डी का तो रोल पाया गया है सर, बट इट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड कंक्लूसिवली प्रूवन येट. लेकिन डेफिनेटली विटामिन डी
का रोल पाया गया है कैंसर का इंसिडेंस कम करने में। मेटफॉर्मिन भी अभी कंट्रोवर्शियल ही है, बट आई थिंक मेटफॉर्मिन का जो बॉडी पे इफेक्ट है in its metabolism, that may decrease the risk of different cancers and other causes of death also. एंड रेशमा जी पॉइंट आउट करती हैं दैट मेनी हार्मोन इंजेक्शंस आर गिवन टू चिकन, दैट इज फार्म ब्रेड चिकन, सो कैन कंजम्पशन ऑफ सच पोल्ट्री आइटम्स कॉज कैंसर? Definitely, sir. Antibiotics and pesticides that are used in our food everywhere, these are causing a lot of um, effect. So there are concerns that increased incidence of GI cancers in Punjab is fallout of the green revolution. What I say, the pesticides that have been used. So it all boils down to this thing. There are many less places where organic farming is being done. We are exposed so much to pesticides, environmental pollution. These are contributing to rise in incidence of cancer. एक लास्ट क्वेश्चन राहुल जी का लेते हैं, बट ये क्वेश्चन भी बड़ा लंबा है, बिल्कुल धाकड़ वाला क्वेश्चन है। एंड राहुल, माय फेवरेट टीम इन द कबड्डी लीग इज ऑफ कोर्स हरियाणा स्टीलर्स, एंड वो धाकड़ बॉयज हैं हमारे। अब ये धाकड़ सवाल है डॉक्टर बिमलेश आपके लिए, कैन ओरल कैंसर बी ट्रीटेड विदाउट सर्जरी? सर, ओरल कैंसर, अर्ली T1 कैंसर्स जो हैं उसमें रेडियोथेरेपी और सर्जरी दोनों का ही रोल बराबर बताया गया है, लेकिन रेडियोथेरेपी से के सीक्वली इतने ज़्यादा बुरे होते हैं, जैसे ड्राई माउथ और ये लॉस ऑफ टेस्ट, डिस्ट्यूसिया ओवरऑल ओरल कैविटी पे, कि उससे बेटर सर्जरी कराना ही होता है T1 कैंसर, अर्लीस्ट कैंसर्स में भी। सो आई वुड से ओरल कैंसर का रोल तो सबसे ज़्यादा रोल तो सर्जरी का ही है, बट लोकली एडवांस्ड में हम उसे कंसोलिडेट करते हैं रेडिएशन से, और कीमोथेरेपी तो अनट्रीटेबल ओरल कैंसर्स में ही यूज़ होता है ज़्यादातर। राहुल जी एक और सवाल पूछते हैं, और वो ये कि नेजल पॉलिप्स आर वेरी कॉमन, नेजल पॉलिप्स आर एसोसिएटेड विद एलर्जी, एंड is it possible that nasal polyp can grow up to become a cancer? और अगर ये और इस सब की बात करते हुए, कैन योगा क्योर एलर्जी एंड नेजल पॉलिप? So nasal polyps, most probably because of allergies and all those things, mostly they are benign, and if they are, they hardly transform into cancer, if at all they occur. And as far as yoga is concerned, yoga is a lifestyle modification, I would say. It cannot cure, but it will definitely help you achieve a good lifestyle, healthy lifestyle. And I would definitely say it is maintenance of healthy lifestyle that where yoga excels. But I don't think yoga can cure cancer. And Dr. Siddharth also joins us in saying that it is a holistic approach which will work, a little bit of everything. And basically आप modifiable factors पे focus करें, और oral cancer की जब बात करें तो it's quite easy to identify, that is use of tobacco. So all forms of tobacco should be stopped with a capital S. Yes, sir. डॉक्टर बिमलेश, 1 घंटा हो गया, हमें पता भी नहीं चला। वी हैव विद अस बैकस्टेज एक और धाकड़ छोड़ा है हमारा, ही इज फ्रॉम कोलकाता एंड हिज नेम इज फराज। सो फराज, कुड यू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज? Faraz is a shy Yes, boy. sir. Yes, here's Faraz. So Faraz, how was today's talk, and what did you learn? What is the take-home message for the entire country? Sir, it was wonderful topic, as we know that cancer are becoming common in our country. Knowing the causes also, like we know that smoking causes cancer, but still people are going and using these things. The thing is that the awareness and social program needs to be implemented in all parts of our country, urban as well as rural. As we can also see in the corporate world, people consume more nicotines. So after being educated, also they are using. So the awareness should be more, so that we can overcome like problem like cancer, sir. Thank you. And Faraz, could you please join us in thanking Dr. Bimlesh Thakur, and could you please show a certificate of appreciation for him?
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ठाकुर। आपने Thank you, हमें sir. बहुत Thank you. Thank you, sir. आपके लिए एक और रिक्वेस्ट आ रहा है बैक स्टेज, वो है कि अगर आप सिर्फ ओरल कैंसर की बात करें अगली बार, सो मे बी नेक्स्ट मंथ वी कैन इनवाइट यू अगेन एंड वी कैन स्पीक अबाउट ओरल कैंसर स्पेसिफिकली, हाउ टू प्रिवेंट एंड हाउ टू Definitely, ट्रीट. With this, I'd definitely, like sir. to thank Yeah. everyone, Dr. Siddharth, Thank you Dr. so much, Yogesh. sir. Yes, a very informative, interactive, and wonderful discussion. Dr. Yogesh और Dr. Siddharth को भी thank you बोलूंगा for having been with us throughout. Anamika जी भी logged in रहे throughout. Dr. Bimlesh, words are not enough to thank you. शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, thank you. In Haryanvi, Thank you थारा so much, भला sir, हो. for Yes, Thank you, sir, for inviting me to this wonderful platform. And I must pay homage to Dr. K. Agrawal. He is a mentor, and we used to look up to him when we were medical students. And I feel really proud to be on this platform which he has started. We used to be a part of his World Health Mela, Delhi Health Mela, also MPNL Health Mela that he used to prescribe. And his efforts in propagating social health reforms and propagating knowledge, I think it is uncomparable, and his energy was also uncomparable. And I really wish to pay homage to him that we are together here discussing these things. And I hope we'll definitely we can make a good change in the society as far as cancers and other communicable and non-communicable diseases are concerned. Thank you so much, sir. थैंक यू वेरी मच. एंड ये डॉक्टर के अग्रवाल सर की लेगेसी है जो आगे चलती जा रही है, एंड वी आर ऑल टुगेदर टेकिंग इट Welcome, sir. फॉरवर्ड. डॉक्टर ठाकुर को भी थैंक यू बोलेंगे फॉर रिमाइंडिंग अस ऑफ आवर इंस्पिरेशन. और के में टॉक्स में एक्चुअली डॉक्टर के अग्रवाल सर ही हमारी इंस्पिरेशन है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ठाकुर. सबका भला हो एंड जय Thank you हिंद. so much, sir. Okay. Jai Hind, sir.